Today's topic is human population and environment. This is the topic in your syllabus. The subject is environmental science and disaster management. The first, I will explain the introduction. The definition of population. The word population has been derived from the Latin word populatio, which means people. The definition of population is the group of individual species which occupy a definite geographic area is defined as population. The next is population growth. The change in population per unit area at particular time is called population growth. Population density. Population density is defined as the number of individual or people per unit area in per unit volume of environment. Carrying capacity, maximum population size indefinitely supported by available resources. The next is human settlement. The human settlement can be defined as communities who live in city, village or town with all social, material, organizational, spiritual and cultural elements which exist and sustain for long time. ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? जो कम्युनिटीज़ कहाँ रहती है? सिटीज़ में, विलेज और टाउन में रहती है, जिसके पास क्या है? सोशल मटेरियल है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एलिमेंट्स है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ क्या लॉन्ग टाइम पर क्या रह रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट. ठीक है. द ह्यूमन सेटलमेंट नीड्स नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल एलिमेंट्स एज वेल एज इट्स सर्विसेज टू सस्टेन. ह्यूमन सेटलमेंट में क्या नीड होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की होती है, फिजिकल एलिमेंट्स की होती है और क्या होती है? सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है वहाँ हमें रहने के लिए. ठीक है. ह्यूमन सेटलमेंट में दीज कंपोनेंट्स कंप्राइजेज ऑफ फ्रेश क्लीन एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड सर्विसेज इंक्लूड लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो. The next is environmental factors governing human settlement. I will explain the all points thoroughly one by one. The first is land. This land is used to develop infrastructure, public complexes and industries. The next is food. With increasing population, there is a demand of more and more food. More land is used for the agricultural activity, use of fertilizer and pesticides used for increase the productivity of crops. Third point is water resources. High population and settlement of human being is different places cause the problem of water scarcity due to unequal of water resources. Next is energy resources. Energy is depleted because high demand of energy resources. The last is forest resources. Due to increased population and use of more land, it is used for the industrialization and human settlement. These all points, these all factors govern under the human settlement. The next is population pollution. Why is it important? Population pollution is the pollution caused due to overpopulation. As we know that population is caused due to the overpopulation. Overpopulation is the condition when the population number of organisms exceeds the maximum carrying capacity of the environment. Reasons for overpopulation. There are different reasons behind the overpopulation. The first is high birth rate. आपको पता ही है कि जैसे ज़्यादा बर्थ होगा तो उसके साथ क्या होगी? पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है. उसके साथ क्या हो गया? पॉपुलेशन में क्या होगा? एक तरह का पोल्यूशन ही हो गया. रहने को जगह नहीं मिलेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा. वो क्या है? एक ओवर पॉपुलेशन का कारण हो गया. ठीक है. लो डेथ उसके साथ ही जैसे हमने पहले ही बताया कि हाई बर्थ रेट होगा. जैसे बर्थ रेट ज़्यादा होने लगेगा और डेथ रेट कम होने लगेगा. इससे क्या होगा? हमें सांस लेने की बहुत डिफ़िकल्टी होगी.
इन्वायरमेंट में, ठीक है। माइग्रेशन के साथ क्या होगा, जो लोग गांव में रहते हैं वो शहर में जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं अपनी फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए, और रहन सहन अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये भी एक कारण हो गया, रीज़न हो गया। इलिटरेसी, जो बिग फैमिलीज़ के, जो अच्छी फैमिलीज़ के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट होते हैं, ये भी एक ओवर पॉपुलेशन का कारण हो गया। इलिटरेसी के साथ क्या होगा, उनमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, पोल्यूशन होने लगेगा, पॉपुलेशन का क्या होने लगेगा, पोल्यूशन होने लगेगा इन द एनवायरनमेंट। Control of population growth. The first is education. Education for the provide of education to poor people. इसके साथ क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अवेयर करना होगा लोगों को कि कुछ लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें जो उन्हें एजुकेशन का पता चले, पुअर पीपल को, और देश को आगे लेकर जाएं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट। लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके साथ क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगी एजुकेशन में, और अवेयर होगा फैमिली प्लानिंग जो आगे फ्यूचर में करनी है उनमें क्या होगी, अवेयरनेस होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट जिनके पास 2 बच्चे हैं और कंपलसरी कर देना चाहिए कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट एक बेनिफिट देगी, इंसेंटिव देगी। इसके साथ क्या है, वो एक अवेयर होंगे और इसके साथ वो उनको बेनिफिट्स इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनकी एक एडवांटेजेस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि 2 बच्चे होने चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, और इंसेंटिव्स उन 2 बच्चों की फैमिली को ही देना चाहिए जिनके 2 बच्चे ही हैं घर में। और इसके साथ क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कंट्रोल होगी, ठीक है। पब्लिसिटी के साथ क्या हो गया, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हम न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में ऐसे पब्लिसिटी हम करेंगे तो इसके साथ भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके साथ वो अवेयर होंगे, और जो पुअर पीपल है उनको भी पता चलेगा, और इसके साथ कंट्रोल होगी पॉपुलेशन ग्रोथ।